Jagodev students. Students, welcome you all in the economic class. Students, today we will study the chapter government budget. That chapter you have studied in the previous class also. So you can understand what is government budget, what is the why it is prepared, and what are the objectives of government budget and the structure of government budget. So you students, you can understand that the government budget has two sides: budget receipt and budget expenditure. And during the year, it is a planning of the coming year. And after the end of the year, then we can balance the government budget. And then we come to know that budget may be balanced or budget may be unbalanced. Balanced and unbalanced budget, you know that when budget receipts and budget expenditure are equal, it is known as balanced budget. And when budget receipts and budget expenditure are not equal, then it is known as unbalanced budget. Balanced budget means both sides are equal, that is revenues are equal to expenditure, receipts are equals to expenditure. But unbalanced budget may be of two types: surplus or deficit. Surplus budget, you know, when budget receipts are more and budget expenditures are less. And deficit budget means when budget receipts are less and budget expenditures are more. And this budget receipts are three types, like revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Revenue deficit, you know students, it is come from revenues. When revenue expenditures are more than revenue receipts, then it is known as revenue deficit. But these revenue deficit there is several implication also. That revenue deficit implicates that in the economy. Implication का मतलब होता है that उसके effects क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट्स है. दीज आर नोन एज द इम्प्लीकेशन. रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली टेल्स अस द इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट की इनेबिलिटी बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सके. एंड बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने की गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ रिकरिंग इन नेचर. ऐसा नहीं कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार कर लिया है. ड्यूरिंग द ईयर वी हैव टू डू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट हैज़ टू डू several times and now government is not in a position to meet that expenditure. So revenue deficit के implications है. implication of revenue deficit, that first is it indicates the inability of the government to meet the expenditure in the proposed budget. गवर्नमेंट ने अपने जो प्रपोज बजट है, जो बजट बनाया है, उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर्स है रेवेन्यू के, गवर्नमेंट की अब इनेबिलिटी है. गवर्नमेंट उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा नहीं कर पा रही है. क्यों? क्योंकि शॉर्ट ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है. एंड ऑल्सो इट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट डेफिसिट सेविंग. रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट की डिस सेविंग भी बताता है. डिस सेविंग यू नो कि जब हमारी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम सेविंग कर सके. कब हम सेविंग नहीं कर सकते? जब हमारे पास पैसा नहीं होता. तो गवर्नमेंट के जब पास रिसिप्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की पास सेविंग्स के लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा. देन रेवेन्यू डेफिसिट ऑल्सो टेल्स अस द डिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट. देन थर्ड इज अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट इज अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट टू curtail its expenditure और increase its revenue. अगर गवर्नमेंट को इसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट फेस करना पड़ता रहेगा तो जितने जैसे जैसे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेंगे, हाई रेवेन्यू डेफिसिट्स गवर्नमेंट के लिए वार्निंग है. इट इज़ अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट को या तो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा और आइदर ही हैज़ टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, या तो अपने रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे थ्रू टैक्सेस को, रेट्स को बढ़ा के अपने रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ानी पड़ेगी, या फिर अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा. तो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. दैट रेवेन्यू डेफिसिट टेल्स अस द इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर. एंड देन revenue deficit also tells us the dissaving of the government, and also it is a warning to the government to decrease the expenditure or either increase the revenue. Next is fiscal deficit. Fiscal deficit, you know student, that when our total expenditures are more and total revenues are less, total receipts are less, then we have to face the fiscal deficit. And government is facing fiscal deficit basically. And fiscal deficit also tells us the borrowings of the government. अगर हमारे पास डेब्ट्स बढ़ते जाएंगे, हमारे पास खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास ओनली सोल्यूशन यही है कि बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी. गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू मीट द एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट हैज़ टू डू द बोरोइंग्स, एंड दिस बोरोइंग्स इज ऑल्सो नोन एज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट के तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट हैज़ सेवरल एडवर्स इफेक्ट्स इन द इकोनॉमी. नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट? तो पहला है आपका डेब्ट ट्रैप. डेब्ट ट्रैप यू नो, जब हम कर्ज के बोझ में जो हम एकदम से फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं. कब फंसते हैं? जब हमें कंटिन्यूसली कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता है. वो हम मतलब हम एक बोरोइंग्स लेते हैं, हम पहले की बोरोइंग्स तो दे नहीं पा रहे, वी हैव टू टेक द अनदर लोन.
So in this way, government has to, every year government has to take the borrowings from other countries or from RBI, and continuously he is in the डेप ट्रैप. हमारी इकोनॉमी पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा और डेप ट्रैप में पूरी कंट्री आ जाएगी. नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन यू नो राइजिंग प्राइसेस, महंगाई बढ़ना. when government's expenditures are increasing, तो government has to borrow money either from RBI or from other countries. आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट को या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ता है. दैट गवर्नमेंट अगर पैसा लेता है आरबीआई से, तो आरबीआई को आइदर ही हैज टू मैनेज फंड्स फॉर द गवर्नमेंट आइदर बाय इशूइंग मोर करेंसी. दिस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. और डेफिसिट फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट जब नए करेंसी प्रिंट करती है तो इससे मनी सप्लाई बढ़ती है इकॉनमी में, और उसकी वजह से हमारी इकनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो इन्फ्लेशन बजट फिस्कल डेफिसिट जो है वो इन्फ्लेशनरी कंडीशन भी लाता है इकोनॉमी में. तो इन्फ्लेशन ऑल्सो अराइज बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट. थर्ड इज फॉरेन डिपेंडेंस. when we have to borrow from any of the countries, so it will increase our dependence on that country. जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी से भी पैसा लेते हैं तो उसके हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. और इस तरह से जब गवर्नमेंट भी दूसरी कंट्री से फंड्स लेती है, उधार कर लेती है, बोरोइंग्स करती है, तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री. सो हाई फिस्कल डेफिसिट विल इंक्रीज द फॉरेन डिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री. और इसकी वजह से we have to work according to the means choice of other country, and we have to depend on other countries. In this way our economy will be decreasing, our development will be affected. Next है हमारा hampers on future growth. Fiscal deficits will hampers our future growth also. It decreases our GDP. It fiscal deficit continuously बढ़ते जाएंगे, पैसा कम होता जाएगा हमारी इकोनॉमी. वी हैव टू बोरोइंग्स ऑल्सो वी हैव टू डू. और इस तरह से गवर्नमेंट के बैंक्स के पास भी पैसा नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के पास भी पैसा कम होता जाएगा. इससे हमारी सिचुएशन जो ऐसी हो जाएगी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी जीडीपी पूरी तरह से कम होती जाएगी. सो फिस्कल डेफिसिट विल हैम्पर्स आवर फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो. हमारी फ्यूचर की ग्रोथ भी रुक जाएगी. नेक्स्ट है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी यू नो गुडविल ऑफ द कंट्री, पोजीशन ऑफ द कंट्री, पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट. जब whenever government has to borrow continuously, so it hampers government credibility, it hampers the goodwill of the government, और उसकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का इरोजन होता है. इरोजन मतलब कमी आती है, लैकिंग होती है, उसकी गुडविल खराब होती है कि बार बार गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है काम करने के लिए. तो दिस फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो मेक इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी. नाउ स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट. दैट फिस्कल डेफिसिट जो है वो देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन पर भी डेट ट्रैप आएगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में. तो इस तरह से वी हैव टू control fiscal deficit, and fiscal deficit can be controlled only not by borrowings, but we have to increase economic activities in our country, that is known as financial discipline or fiscal discipline. That means instead of borrowings we have to work for fiscal discipline in the country. We have to increase our economic activities, we have to explore new resources which are lacking in our country. वी हैव टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. इस तरह से हमें अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को और आगे बढ़ा सकें और हम दूसरी कंट्रीज से बोरोइंग्स ना करें. देन नेक्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ इज प्राइमरी इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट यू नो इन बजट इज प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट स्टूडेंट्स यू नो that whenever we have to take the borrowings, from that borrowings if we have to exclude the interest payment of the previous year borrowing, then it is known as primary deficit or the current year borrowings only. प्राइमरी डेफिसिट ये हमें इम्प्लीकेट करता है कि हमारे गवर्नमेंट के पास कितने पैसा चाहिए जो हमें बोरोइंग्स के अलावा इंटरेस्ट भी पे करना है. दैट मीन्स इट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग्स टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट को भी हमारे पैसा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी पैसा बोरो करना है, प्लस फिस्कल डेफिसिट के लिए भी बोरो करना है. सपोज अगर किसी ईयर में फिस्कल डेफिसिट 0 है, देन ऑल्सो इफ वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस ईयर बोरिंग, देन वी हैव टू टेक बोरिंग. सो दिस इज प्राइमरी डेफिसिट, कि व्हेन वी आर नॉट हैविंग मनी टू पे द इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर बोरिंग. सो दीज आर द इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट. दैट दीज डेफिसिट्स इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. It increases our position
means it increase our burden on economic activities, burden on our future generation. Continuously our economic activities are hampering, our GDP will be decreasing, और इस तरह से हमारी पोजीशन जो है वो पूरी तरह से कम होती जाती है because of the fiscal because of these type of deficit. So we have to work for eliminating these deficit. We have to maintain financial discipline in the country.